भारतीय राष्ट्रीय संघ। हाय गाइस, वेलकम बैक आफ्टर ए लॉन्ग टाइम। एक्चुअली बहुत सारे लोगों ने मुझे व्हाट्सएप किया है कि सर आप वीडियो क्यों नहीं अपलोड कर रहे हैं। एक्चुअली क्या है कि कॉलेज का कुछ काम था जिसकी वजह से मैं बहुत बिजी था और उसके बाद मेरी अपनी भी पढ़ाई रहती है, तो जिस वजह से मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पा रहा था, क्योंकि अपना जो पढ़ाई है, अपना जो काम है कॉलेज का या फिर मेरी जो पढ़ाई है उसके ख़त्म होने के बाद ही मैं ये वीडियो अपलोड बना सकता हूँ या वीडियो अपलोड कर सकता हूँ। तो आज समय मिला है, तो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं भारतीय राष्ट्रीय संघ। इससे पहले वाले एपिसोड में हम लोगों ने पढ़ा था भारत एग्रेसिव ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। आज हम लोग लिबरल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बात करेंगे। एट फर्स्ट वी शुड टॉक अबाउट भारतीय राष्ट्रीय संघ। So this session is really very important, and I think after 1-2 class, after 1 year, after 2 class, we will finish the India's freedom. So this session is very important. Keep watch and like and subscribe my YouTube channel. Okay, so we will start from Bharatiya Rashtriya Sangh. Bharatiya Rashtriya Sangh was established in 1884 by Alan Octavian Hume. A.O. ह्यूम भी कहा जाता है इनको, A.O. ह्यूम भी कहा जाता है। इनका पूरा नाम हुआ एलन ऑक्टेवियन ह्यूम। This organization was established by A.O. Hume in 1884. At that time, this organization was known as Bharatiya Rashtriya Sangh. Bharatiya Rashtriya Sangh has changed in after a certain period of time. Bharatiya Rashtriya Sangh was known as Bharatiya Rashtriya Congress. Actually, the first conference of Bharatiya Rashtriya Sangh had happened on 28 December 1885 in Maharashtra at Gokul Das Tejpal Sanskrit Mahavidyalaya in Maharashtra. This conference was chaired by Vyomesh Chand Banerjee. Vyomesh Chand Banerjee was the first person who chaired the conference of Bharatiya Rashtriya Congress. Actually, in that conference, Dada Bhai Naoroji advised the members, the participants, the members of this conference that to change the name of Bharatiya Rashtriya Congress, Bharatiya Rashtriya Sangh, and from that time Bharatiya Rashtriya Sangh was known as Bharatiya Rashtriya Congress. Okay, so you will have to remember the. This is very important for examination purpose. So you will have to remember this. भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। मैं आपको बताता हूँ 1884 में A.O. ह्यूम ने भारतीय राष्ट्रीय संघ की स्थापना की थी। 28 इसका पहला कॉन्फ्रेंस हुआ था 28 दिसंबर 1885 में व्योमेश चंद बनर्जी के माध्यम से। व्योमेश चंद बनर्जी had lead this movement. पहला कॉन्फ्रेंस कहाँ हुआ था? द फर्स्ट कॉन्फ्रेंस ऑफ भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस हैड हैपेंड इन महाराष्ट्र इन गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय. That time Dada Bhai Naoroji advised the member of 72% had participated in this movement. 72% had participated in this conference. You will have to remember everything because there are so many conferences had happened for India's freedom. But today we are going to discuss about the conference which was very much important for examination purpose. So it is very important. This class is very important for our upcoming examination, mainly for BPSC and SI also. So 72% had participated in this movement, in this conference. That time Dada Bhai Naoroji had advised that to change the name of Bharatiya Rashtriya Congress. राष्ट्रीय संघ उन्होंने कहा, दादा भाई नौरोजी ने कहा इसके पहले कॉन्फ्रेंस में कि भारतीय राष्ट्रीय संघ का नाम बदल के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कर देना चाहिए, और तब से भारतीय राष्ट्रीय संघ जो है ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नाम से जाने लगा। अच्छा, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जब स्थापना हुई थी, देन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस was established. That time भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस was known as भारतीय राष्ट्रीय संघ। यह आपको इम्पोर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा, एक बात मैं आपको बता दूं, अभी भी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस चल रही है, तो मैं आपको बता दूं कि ये वो भारतीय कांग्रेस नहीं है जो उस समय थी। ये दिमाग से निकाल दीजिएगा। बहुत सारे लोग बोल रहे थे क्योंकि महात्मा गांधी ने कहा था कि देश की आज़ादी के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को समाप्त कर दिया जाएगा। ठीक है, चलिए, तो ये वाला और दोनों का कंपैरिजन मत कीजिएगा कोई भी पॉलिटिकल मामला को लेते हुए,
क्योंकि अभी इलेक्शन का टाइम है तो आप लोग समझ रहे होंगे कि चलिए तो 28 दिसंबर 1885 को इसका कॉन्फ्रेंस भुवनेश्वर बनर्जी इसके प्रथम अध्यक्ष थे। उसके बाद इसका जो मूवमेंट हुआ वो 1886 में हुआ। 1886 yes, the second conference had happened in 1886 in Kolkata. That time Dadabhai Naoroji chaired this conference. That time Dadabhai Naoroji had became the chairman of this conference. One thing that was very important about Indian National Congress कि कोई भी व्यक्ति जब चेयरमैन बनता था या अध्यक्ष बनता था तो एक ही वर्ष के लिए बनता था, अगले वर्ष के लिए फिर चुनाव होता था उसी कॉन्फ्रेंस में। तो 1885 में भुवनेश्वर बनर्जी को इसके अध्यक्ष बने। 1886 में कलकत्ता अधिवेशन में दादाभाई नौरोजी इसके अध्यक्ष बने। दादाभाई नौरोजी वाज नोन एज द ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। दादाभाई नौरोजी का एक बड़ा महत्वपूर्ण बड़ा इंपॉर्टेंट है कि उन्होंने भारत की अर्थव्यवस्था पर किताब लिखी थी। भारत की अर्थव्यवस्था पर उन्होंने किताब लिखी थी, मुझे ठीक से याद नहीं आ रहा है किताब का नाम, लेकिन उन्होंने भारत के इंडियन इकोनॉमी पे उन्होंने एक बुक लिखा था। तो Dadabhai Naoroji was known as the grand old man of India. One thing that was also very important and you must know about that, Dadabhai Naoroji belonged from liberal organization. भारतीय दादाभाई नौरोजी जो थे वो लिबरल ऑर्गेनाइजेशन से बिलोंग करते थे। 1893 में उन्होंने चुनाव लड़ा था ये लिबरल पार्टी से और वो जीत भी गए थे। अच्छा, एक बात मैं दादाभाई नौरोजी 3 बार कांग्रेस के अध्यक्ष रहे। एक पहला रहा 1886 में कोलकाता कॉन्फ्रेंस में, मैं यहाँ लिख रहा हूँ, याद रखिए कोलकाता कॉन्फ्रेंस। After that, this conference he became second time in 1893 in Lahore conference, Lahore, and third time again he became in 1906. He became the chairperson of Bharatiya Rashtriya Congress in Kolkata conference, Kolkata अधिवेशन। तो दादाभाई नौरोजी 3 बार इसके अध्यक्ष जो हैं वो रह चुके थे। ओके, अब इसके बाद जो है हम लोग अभी एक बड़ा इम्पोर्टेंट मामला को लेकर पढ़ेंगे। हम लोग जो एग्जामिनेशन पर्पस से इम्पोर्टेंट है उसी को लेकर हम लोग चलेंगे, क्योंकि कॉन्फ्रेंस बहुत सारे हुए थे भारत में, तो सारे इम्पोर्टेंट नहीं है, जो इम्पोर्टेंट है उसके बारे में जानना है। सबसे पहला एक मामला है कि जन गण मन, जो भारतीय राष्ट्रीय गान है हमारा, जो नेशनल एंथम है हमारा, आवर नेशनल एंथम फर्स्ट टाइम sung in 27th conference in Kolkata in 1911. This conference was chaired by Pandit Visun Narayan Dhar. Yes, Pandit Visun Narayan Dhar, ये याद रखिएगा। भारत हमारा जो नेशनल एंथम है ये 27वां कॉन्फ्रेंस हुआ था कोलकाता में, 1911 में। पंडित विशन नारायण धर जो थे, विशन नारायण धर इसके अध्यक्ष थे। और उस समय पहली बार जन गण मन, जो हमारा नेशनल एंथम है, वो गाया गया था, जन गण मन। In 27th conference in Kolkata in 1911, that conference was chaired by Pandit Visun Narayan Dhar. That time, first time, our Jana Gana Mana song had Jana Gana Mana anthem had sung. Jana Gana Mana had introduced in 1911. ये याद रखिएगा, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जामिनेशन पर्पस। ये पूछा जाता है कि जन गण मन जो है हमारा राष्ट्रीय एंथम वो किस अधिवेशन में गाया गया था, कौन इसके अध्यक्ष थे, ये अधिवेशन कहाँ हुआ था, तो ये बड़ा महत्वपूर्ण रहता है। चलिए अब हम लोग बात करते हैं फर्स्ट यूरोपियन पर्सन हु हैड बिकेम द चेयरपर्सन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस इन 1888। हम लोग 1911 में आ गए, लेकिन सबको ध्यान से सुनते चलिएगा। आप अपना 20-25 मिनट दीजिए, आपका पूरा ये इंडियन फ्रीडम का जितने भी एपिसोड मैंने पढ़ाए हैं सारा कंप्लीट हो जाएगा। एक सवाल उससे अलग से नहीं पूछा जा रहा है ना, आता है एग्जाम में, देख लीजिएगा। तो 1888 में, in 1888 जॉर्ज यूले became the first founder who became the chairperson of Indian National Congress. George Ewell, you will have to remember the name of George Ewell. 1888 में जॉर्ज यूले के प्रथम अध्यक्ष बने थे, ये याद आपको रखना पड़ेगा। जॉर्ज यूले वाज द फर्स्ट चेयरमैन ऑफ फर्स्ट फॉरनर चेयरमैन ऑफ इंडिया।
अच्छा, फर्स्ट फॉर्मर चेयरमैन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। वन थिंग दैट वाज आल्सो इम्पोर्टेंट, तो बड़ा इम्पोर्टेंट था, मुझे याद, मैं बता रहा हूँ आपको। जस्ट अ मिनट। यस, बाल गंगाधर तिलक, सॉरी, लाला लाजपत राय, 1920। In 1920 conference, Lala Lajpat Rai became the chairperson of this Congress. Lala Lajpat Rai was also known as Shere of Punjab. इसी कॉन्फ्रेंस में असहयोग प्रस्ताव जो था उसको एक्सेप्ट किया गया था। इन दिस कॉन्फ्रेंस असहयोग प्रस्ताव वाज एक्सेप्टेड। Lala Lajpat Rai, you will have to remember the name of, in 1920 Lala Lajpat became the chairperson of Indian National Congress. Okay. One thing that was very important for Indian National Congress, in its 12th conference, 12th इसके अपने 12वां अधिवेशन में in 1896 first time our national song Vande Mataram song had been, yes, 12th conference in 1896 our national song Vande Mataram song had sung by Congress in this 1896 में। हाँ, व्योमेश चंद्र, सॉरी बता रहा हूँ आपको, रहीमतुल्ला, यस, यह अधिवेशन जो हुआ था 12वां अधिवेशन हुआ था 1896 में, कलकत्ता में हुआ था। रहीमतुल्ला इसके अध्यक्ष थे, रहीमतुल्ला। और फर्स्ट टाइम वंदे मातरम सॉन्ग जो था वो गाया गया था, वंदे मातरम सॉन्ग फर्स्ट टाइम। तो दो चीज आपको इंपॉर्टेंट रखना है, एक था 1911 में जनक नेशनल एंथम को गाया गया था, उस समय पंडित विष्णु नारायण धड़ इसके अध्यक्ष थे। दूसरा आपको इंपॉर्टेंट है जो 1896 में कलकत्ता अधिवेशन में वंदे मातरम सॉन्ग गाया गया था, ये रहमतुल्लाह इसके अध्यक्ष थे। ये इंपॉर्टेंट हो गया, दो याद रखिएगा। और तीसरा 1888 में जॉर्ज यूले जो थे इसके पहले विदेशी अध्यक्ष थे। अब मैं आपको बताता हूँ इसके महिला अध्यक्ष के बारे में। In 1917, A.O. Hume became the chairman of Indian National Congress in 1970, and she was the first female lady who became the chairman of Indian National Congress in 1970. 1917 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष जो थी वो एनी बेसेंट थी। So for examination purpose, you will have to remember this. Okay, in 1925, Sarojini Naidu was the first female freedom, first Indian female who became the chairperson of Indian National Congress in Kanpur conference. Sarojini Naidu जो थी 1925 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष बनी थी कानपुर कॉन्फ्रेंस में। ओके, in 1938 Subhash Chandra Bose became the chairperson of this Indian National Congress in Haripura conference. हरिपुरा एक दिन गुजरात, ये आपको याद रखना पड़ेगा, एग्जाम में पूछा गया था कि हरिपुरा कहाँ है, जिसके अध्यक्ष सुभाष चंद्र बोस बने थे। तो ये याद रखना पड़ेगा कि ये गुजरात में था, गुजरात में है। जब भारत आजाद हुआ, when India got freedom, that time J.B. Kripalani was the chairperson of Indian National Congress. J.B. Kripalani. तो आपको याद रखना पड़ेगा in 1946 and that was the 95th conference. भारत की आजादी के समय J.B. Kripalani भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे। J.B. Kripalani. In 1946, J.B. Kripalani was the chairperson of Indian National Congress. One thing that was also very important, from 1940 to 1945, Abdul Kalam Azad was the chairman of Indian National Congress. Abdul Kalam Azad. अब्दुल कलाम आजाद जो थे, यस, हाँ, अब्दुल कलाम आजाद जो थे वो सबसे लंबे समय तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष रहे और सबसे युवा अध्यक्ष भी थे। In 1923 फर्स्ट टाइम ही बिकेम
चेयरपर्सन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। तो एक बार एग्जाम में पूछा गया था कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सबसे युवा अध्यक्ष कौन थे। ऑप्शन में था 3-4 आदमी का नाम, जिसमें अब्दुल कलाम आजाद भी था। तो आपको मुझे ये नहीं मालूम था, हमको यही मालूम था कि 1940 से 1945 तक ये अध्यक्ष रहे थे, पर हम बाद में जब पढ़े तो मालूम चला कि सबसे युवा अध्यक्ष जो थे वो अब्दुल कलाम आजाद ही थे। 1923 में ये अध्यक्ष बने थे। हाँ, दैट टाइम ही वाज वेरी यंग। ओके, एग्जामिनेशन पर्पस से हो गया। एक और मामला था लखनऊ कॉन्फ्रेंस। यस, लखनऊ कॉन्फ्रेंस हैड हैपेंड इन 1916। दैट टाइम aggressive organization and liberal organization unite together. लखनऊ अधिवेशन वाज लीड बाय अंबिका चरण मजूमदार। अंबिका चरण मजूमदार 1916 में ये हुआ था और इसको लीड किया गया था। इसमें नरम दल और गरम दल दोनों जो थे वो साथ में आ गए थे। उसके बाद यस, इन 1915 कॉन्फ्रेंस, 1915 में लॉर्ड वेलिंगटन पहली बार पार्टिसिपेट किए थे इंडियन नेशनल कांग्रेस में। लॉर्ड इन 1915 फर्स्ट टाइम लॉर्ड वेलिंगटन पार्टिसिपेटेड इन दिस कॉन्फ्रेंस। लॉर्ड वेलिंगटन 1915 की कॉन्फ्रेंस में लॉर्ड वेलिंगटन जो थे उन्होंने पार्टिसिपेट किया था। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। और सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा इसके अध्यक्ष थे। सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा, लॉर्ड वेलिंगटन में सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। Satyendra Prasad Sinha was the chairperson of this conference. Yes. Okay. अच्छा, ये एक बड़ा टॉपिक इम्पोर्टेंट है, मैं इसको लिख के बताता हूँ। 1916 कॉन्फ्रेंस, 1916 अंबिका चरण मजूमदार was the chairman and chairperson of Indian National Congress. That meantime, aggressive organization and liberal organization unite. They became unite. And that meantime, Bal Gangadhar Tilak had told that स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेके रहूंगा। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेके रहूंगा। अंबिका चरण मजूमदार इसके अध्यक्ष थे। इसमें गरम दल और नरम दल में यूनिटी हो गई थी। तो यू विल हैव टू रिमेंबर दिस इन 1916। ओके, और इससे ज्यादा कांग्रेस से सवाल नहीं पूछा जाता है, जो भी पूछा जाएगा आपसे। यस, one thing that was also very important. In 1931, Sardar Vallabh Bhai in Karachi conference, Karachi, 1931, that was the 46th conference of Indian National Congress. 46वां कांग्रेस था 1931 में। कराची में यह अधिवेशन हुआ था। इसमें सरदार वल्लभ भाई पटेल इसके अध्यक्ष थे और उसमें मौलिक अधिकार की डिमांड उन्होंने की थी। मौलिक अधिकार, ह्यूमन राइट्स के बारे में उन्होंने बात की थी, डिमांड किया था। 1931 कराची कॉन्फ्रेंस में ये सवाल एक बार पीसीएस के एग्जाम में पूछा गया था, जेपीएस के एग्जाम में, झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन के एग्जाम में पूछा गया था कि मौलिक अधिकार का जो मांग किया गया था। और मैं आपको एक बात बताता हूँ, इससे 2 सवाल है। तो पहला ये सवाल था कि किस कॉन्फ्रेंस में कहा गया था, और इसी से जस्ट रिलेटेड था कि किसने कहा था। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने इसका डिमांड किया था मौलिक अधिकार का 1931 में 46 कांग्रेस कॉन्फ्रेंस में। ओके, तो यू विल हैव टू रिमेंबर दिस इन एनी सर्कमस्टांसेस। और मैं जो भी आपको बता रहा हूँ, जो भी पढ़ा रहा हूँ, आपको वो सारे एग्जामिनेशन पर्पस को ही ध्यान में रख के पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि कॉन्फ्रेंस बहुत सारे हुए थे, अधिवेशन बहुत सारा हुआ था, पर बहुत सारा इंपॉर्टेंट नहीं है। कभी कभी क्या होता है कि हम लोग यूजलेस चीज पढ़ते रह जाते हैं और यूजफुल चीज छूट जाता है। ये सारी इंपॉर्टेंट चीज है। अच्छा, एक और मूवमेंट बड़ा इंपॉर्टेंट है, 91 कांग्रेस कॉन्फ्रेंस, 1991 इकानवा कांग्रेस कॉन्फ्रेंस। दिस कॉन्फ्रेंस हैड हैपेंड इन 1937। दैट मीन टाइम
मैं थोड़ा डिटेल से बताता हूँ, रुक जाइए। 91 Congress conference that had happened in 1937. Pandit Jawaharlal Nehru was the chairperson of this conference. Jawaharlal Nehru जो थे वो अध्यक्ष थे, और ये पहला कॉन्फ्रेंस था जो गांव में हुआ था। इसका नाम था फैजपुर कॉन्फ्रेंस। फैजपुर में हुआ था, गांव में हुआ था, ठीक है, याद रखिएगा। जवाहरलाल नेहरू इसके अध्यक्ष थे। 1937 में ये कॉन्फ्रेंस हुआ था, फैजपुर में हुआ था, गांव में हुआ था। जवाहरलाल नेहरू इसके अध्यक्ष थे। यू विल हैव टू रिमेंबर दिस, ओके। ये सारे जो हैं ये इंडियन नेशनल कांग्रेस से जुड़ा हुआ है, जो भारत की आज़ादी में एक वाइटल रोल प्ले किए थे। अच्छा, एक और मैं आपको बता देता हूँ जो इम्पोर्टेंट है। अच्छा, एग्जामिनेशन पर्पज से आपको 3 सवाल पूछे जाते हैं कभी कभी लगातार सीरियल वाइज में। वो मैं पूछ रहा था, नाम बता ही चुके हैं इसमें। ये बस जब भी इंडियन नेशनल कांग्रेस से पूछा जाएगा तो आपसे इतना ही पूछा जाएगा। ये लिबरल ऑर्गेनाइजेशन था, बहुत सारे लिबरल ऑर्गेनाइजेशन से लोग जुड़े हुए थे। एक और महत्वपूर्ण बात है कि ये कोई भी पॉलिटिक्स से कहीं से भी बीजेपी और कांग्रेस की बातें नहीं हो रही हैं। ये उस समय जो हुआ था इतिहास में, जो अध्यक्ष बना था, क्योंकि आप देख सकते हैं कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो स्थापना की गई थी वो एक फॉरनर के द्वारा किया गया था। एलन ऑक्टेवियन ह्यूम जो थी वो आयरिश लेडी थी, है ना। He was not an Indian, so you will have to remember this। और चूंकि बिहार में पॉलिटिकल इलेक्शन भी होने वाला है तो कहीं ये ना लग जाए लोगों को कि मैं पॉलिटिक्स को बढ़ावा देगा हमें कांग्रेस बीजेपी करना, वैसा कुछ नहीं है। ये एग्जामिनेशन पर्पज से था। 1 नंबर का सवाल इससे आता है। यू विल हैव टू रिमेंबर दिस, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। और मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब